Hello everybody. This particular video is about how to perform keyword research for your search engine optimization part. So इस वीडियो में I'm going to demonstrate how to use Google Keyword Planner to research the keywords, and which is the first step to go for making your website search engine friendly or optimizing your web pages with respect to search engine guidelines. So in the beginning, I assume that all of you have already signed up with Google Ads account, क्योंकि Google Ad accounts में ही आपको Google Keyword Planner जो tool है वो available है. So I am starting with Google Ads account. Like I have already signed into my Google Ads account जैसा आप देख रहे हो. और जब आप फर्स्ट टाइम Google Ads account में लॉग इन करोगे तो आपको भी कुछ इस तरह का स्क्रीन मिलना चाहिए. So once you are on this screen, if you look at the left hand side, you will find this tools option. Okay, under tools you have this planning option, and under this planning option, just a moment everybody, while the option is coming, you will have this keyword planner. So you have to follow this particular option. I just clicked on keyword planner. Wait while the screen is coming up. So the assignment which you have been given, accordingly you are to research the keywords. So सबसे पहले एक बार assignment को समझ लेते हैं कि आपको करना क्या है. This is basically your assignment. The purpose of this assignment is to perform keyword research using Google Keyword Planner for your website. You will need to identify 15 keywords with the following conditions. Now the conditions are, as it is mentioned, you are supposed to research 15 keywords. Out of 15 keywords, 5 keywords should have low competition, and the search volume starts with 10K, greater than or equal to 10K, and rest of the 10 keywords you can either select those keywords with medium competition or high competition, but it is always recommended that one should go with the low competition keywords, क्योंकि जितना ज़्यादा keywords आप low competition के साथ use करोगे उतना जल्दी chances होते हैं कि वो web page rank कर पाए search engine में. Now the other conditions which I have already mentioned are the keyword should be of minimum 3 words. ये मैं already explain कर चुका हूँ कि keyword 3 words का क्यों होना चाहिए, क्योंकि 2 words keywords या 1 word keywords से user का intent clarify नहीं होता है. What I mean is like अगर किसी डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन के लिए ही कोई कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं और वेबसाइट या वेब पेज को ऑप्टिमाइज करने के लिए तो उसको यूज करते हैं, और फॉर एन एग्जांपल हम कीवर्ड लेके चलते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स. सो अगर हम टर्म डिजिटल गूगल में डालेंगे सर्चिंग के लिए तो गूगल को कैसे पता चलेगा दैट आई एम सर्चिंग फॉर डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन और डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग. और अगेन इफ आई यूज डिजिटल मार्केटिंग मीन्स 2 words, I put these 2 words in Google search window. Like we can have this demonstration over here. Like in first case I just type digital. मैंने डिजिटल टाइप किया तो गूगल ने मेरे को डिजिटल टर्म से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दिखा दी, which is not at all any way closer to the digital marketing training course or institution. अब अगर मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से ही सर्च करता हूँ, even then it will give me different results, क्योंकि हम जो क्वेरी सर्च इंजन को करेंगे सर्च इंजन उसी क्वेरी को समझते हुए हमें अकॉर्डिंगली रिजल्ट शो करेगा. लेकिन मेरा जो इंटेंट है वो है आई एम लुकिंग फॉर एन इंस्टीट्यूशन हु इज प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग्स. सो जैसे ही मैं यहाँ पे कोर्स डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूशन टाइप करूंगा तो मेरे को जो गूगल रिजल्ट दिखाएगा सारे के सारे वो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाली इंस्टीट्यूशंस के ही दिखाएगा, या ऐसी वेबसाइट्स के मेरे को लिस्टिंग में रिजल्ट्स दिखाएगा जो कि डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज सर्टिफिकेशन कोर्सेज ऑफर करते हैं. तो जब भी आपने कोई भी कीवर्ड सिलेक्ट करना है, द फर्स्ट थिंग विच यू आर सपोज टू कंसिडर इज यूजर इंटेंट. जब तक कीवर्ड से यूजर का इंटेंट क्लेरिफाई नहीं होता उस कीवर्ड को यूज करने का कोई एडवांटेज ही नहीं है फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर वेब पेज और वेबसाइट. सो यहाँ पे जब हम गूगल कीवर्ड प्लानर में कुछ भी कीवर्ड रिसर्च करेंगे तो हमें सबसे पहले ये क्लियर होकर चलना पड़ेगा कि हमारा जो एक यूजर है जो भी हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं उस वेबसाइट को सर्च करने के लिए किस तरह की टर्म्स को यूज कर सकता है. तो वो एक रेफरेंस टर्म हमें गूगल को यहाँ पे व्हाइल रिसर्चिंग द कीवर्ड्स प्रोवाइड करवानी पड़ती है. लाइक अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल, आई जस्ट क्लिक्ड ऑन डिस्कवर न्यू कीवर्ड.
ठीक है। अब यहाँ पे ये जो सर्च ये जो विंडो आ रही है, एंटर प्रोडक्ट और सर्विस क्लोजली रिलेटेड टू योर बिजनेस, मतलब गूगल ये चाहता है कि आप जिस तरह की वेबसाइट के लिए कीवर्ड रिसर्च करना चाहते हो, मेरे को उस वेबसाइट के रेलेवेंस में कोई टर्म यहाँ पे आप दो, सो दैट कि उस टर्म के बेस पे गूगल आपको वो रिजल्ट्स दिखाए कि जो यूजर है किस किस तरह के कीवर्ड्स यूज कर रहा है। क्योंकि ये हम इसलिए गूगल का रेफरेंस लेके चल रहे हैं, हम ये एज्यूम करते हैं कि आज की डेट में मोर देन 90% और 95% पीपल आर यूजिंग गूगल एज अ सर्च इंजन। तो जब इतना ही ऑडियंस गूगल को एज ए सर्च इंजन यूज कर रही है और अपनी क्वेरीज ऑन अ डेली बेसिस गूगल सर्च इंजन को फीड कर रही है, नाउ गूगल इज कीप ऑन रिकॉर्डिंग ऑल दोस क्वेरीज विद इन इट्स डेटाबेस। तो गूगल के पास तो बहुत बड़ा डेटाबेस हो गया कि कितने यूजर कौन सी टर्म को या कौन से कीवर्ड को यूज कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर वेबसाइट को सर्च करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने अगर लिख दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग, ओके, यहाँ पे मैंने गूगल को एक रेफरेंस दे दिया डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। जस्ट अ मोमेंट। उसके बाद what I am supposed to do is I will ask Google to give me the results. So जब भी आपने एक यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया, एक रेफरेंस नाम दे दी, उसके बाद आपको ये बटन प्रेस करना है गेट रिजल्ट्स। नाउ वेट फॉर सम टाइम। तो नेक्स्ट स्क्रीन पे गूगल आपको कुछ ये रिजल्ट्स टेबल के फॉर्म में शो करेगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हो, हमने गूगल को टर्म दी डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग और उसके सामने हमारे पास ये कुछ स्टैटिस्टिक्स या कुछ हमारे पास फिगर्स आई हैं इन द फॉर्म ऑफ टेबल। एंड द फर्स्ट कॉलम इज एवरेज मंथली सर्चेस, सेकंड इज 3 मंथ चेंज, ईयर ऑन ईयर चेंज, कंपटीशन, एड इंप्रेशन शेयर और followed by some other information. For this particular exercise, we are only concerned with average monthly searches, ये जो कॉलम है, and the competition. सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें जब कीवर्ड सिलेक्ट करनी है तो प्राइमरीली हम इन दो पैरामीटर्स को कंसीडर करते हैं। देयर आर अदर पैरामीटर्स आल्सो विच वी नॉर्मली कंसीडर, बट आप लोग अभी इस एक पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए एवरेज मंथली सर्चेस एंड कंपटीशन को ही कंसीडर करके चलोगे। बिफोर यू कंपेयरिंग दीज स्टैटिस्टिक्स, आपने एक दो चीजें जरूर यहाँ पे चेंज करनी है। अब कीवर्ड रिसर्च ब्रॉडली स्पीकिंग हम दो तरीके से कंसीडर करते हैं, वन इज नोन एज अ ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च एंड अदर वन इज नोन एज लोकल कीवर्ड रिसर्च ब्रॉडली। अब लोकल कीवर्ड रिसर्च एंड ग्लोबल कीवर्ड रिसर्च में डिफरेंस क्या है, लेट मी एक्सप्लेन। जब कोई भी बिजनेस जिसकी की टारगेट ऑडियंस उनको लगता है विद इन कंट्री है, अगर उनको जो कस्टमर है विद इन कंट्री ही चाहिए, वो कंट्री से बाहर के कस्टमर को डील नहीं कर सकते या अपने प्रोडक्ट या सर्विस को कंट्री से बाहर शिप नहीं कर सकते, तो नेचुरल सी बात है कि वो अपनी जो टारगेटेड ऑडियंस है, जिसको हम कस्टमर पोटेंशियल कस्टमर्स भी बोल सकते हैं, वो विद इन कंट्री ही एक्सपेक्ट करेंगे। तो जब हम विद इन कंट्री बिजनेस के लिए कोई भी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो दैट काइंड ऑफ कीवर्ड रिसर्च इज नोन एज लोकल कीवर्ड रिसर्च। और उस केस में आप ऊपर देखो, यहाँ पे ये कंट्री सिलेक्टेड है एज एन इंडिया। और जब हम ग्लोबल लेवल के लिए इसको रिसर्च करेंगे कीवर्ड्स को, तो हम यहाँ पे इस कंट्री को रिमूव कर देंगे, देन इट विल बिकम, आई जस्ट सेव इट just to give you the demonstration. I'll just save this particular screen and you will see now the country name will be changed to all locations. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये all locations में convert हो चुका है। बट आप ये जो असाइनमेंट करोगे, उस असाइनमेंट के लिए everybody is supposed to use country name as India, और आप यहाँ से country दोबारा से सिलेक्ट कर सकते हो, India as a country, and then save it. और अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों तक हमारी ये वेबसाइट रीच कर सकती है, वो हमारे पास यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली फिगर भी ये दिखा देगा। तो नाउ वी हैव दिस इंडिया एज ए कंट्री, और लैंग्वेज यहाँ पे आपका इंग्लिश ही होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जो आपको ये डाटा दिखाएगा वो जुलाई 2024 से जून 2025, मतलब जो पिछले एक साल का किसी भी कीवर्ड का डाटा होगा, या वो कीवर्ड कितनी बार यूजर्स ने यूज किया है विद इन द लास्ट 1 ईयर, वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा। इन नॉट इन द लास्ट 1 ईयर, मतलब पिछले एक साल में मंथली ऑन एन एवरेज बेसिस मंथली क्या उस पे सर्च वॉल्यूम आया है, वो यहाँ पे शो करेगा। अब देखो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, इसका सर्च वॉल्यूम मिनिमम है 10,000 to 100,000, मतलब 10K to 100K, एंड द कंपटीशन इज मीडियम। अब एक चीज का और ध्यान रखना है आपने, जैसा कि मैंने आपको असाइनमेंट में भी बोला है,
स्टॉप वर्ड्स। अब स्टॉप वर्ड्स ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं कि व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स, लाइक द, इज, ऑफ, व्हाई, व्हेन, वेयर, गो, टू, जो इस तरह के टर्म्स हैं, दीज आर कंसिडर्ड टू बी स्टॉप वर्ड्स। सो रिकमेंडेशन ये रहता है कि आपको कीवर्ड्स में स्टॉप वर्ड्स अवॉइड करने हैं। ऐसा नहीं है कि आप ले नहीं सकते हो, आप ले सकते हो, बट सर्च इंजन्स उनको किसी अलग तरीके से लेते हैं। मतलब सर्च इंजन व्हाइल दे आर प्रोसेसिंग कंटेंट और टेक्स्ट ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ वेबसाइट, दे नॉर्मली इग्नोर स्टॉप वर्ड्स। मैं उसका एक छोटा सा आपको यहाँ पे डेफिनेशन भी शो कर देता हूँ। व्हाट आर स्टॉप वर्ड्स इन एसईओ। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, इन एसईओ स्टॉप वर्ड्स आर कॉमन शॉर्ट एंड फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स दैट सर्च इंजन्स लाइक गूगल ऑफ्टन डिसरिगार्ड व्हेन एनालाइजिंग कंटेंट एंड रैंकिंग वेबसाइट्स। तो देखो आप यहाँ पे रैंकिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि हम इन स्टॉप वर्ड्स को कम से कम यूज करें। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम इन स्टॉप वर्ड्स के बगैर वेबसाइट का कंटेंट ड्राफ्ट कर सकें, बट एज फार एज कीवर्ड्स आर कंसर्न, आपको कीवर्ड्स में स्टॉप वर्ड्स अवॉइड करना है। So these words are like the and or is generally don't significantly alter the meaning of a search query or the content's core topic। मतलब कहने का ये है कि अगर हम इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो ये कीवर्ड का जो मीनिंग है या उसका जो इंटेंट है उस पर कोई इसका इफेक्ट नहीं आता है। तो अब कीवर्ड्स जैसे ये है बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज, दिस इज गुड, ये कीवर्ड लिया जा सकता है क्योंकि ये 3 वर्ड्स से ज्यादा है, या 3 वर्ड्स, मैंने बोला कि 3 मिनिमम 3 वर्ड्स तो होने ही चाहिए, 3 वर्ड्स से ज्यादा होंगे तो इवन और बेटर हो जाता है। लेकिन सर्च वॉल्यूम जो है वो 1000 टू 10,000 है, और हमारी असाइनमेंट के अकॉर्डिंगली जो आपका सर्च वॉल्यूम है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम 10,000। तो इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि आपके जितने भी कीवर्ड आप रिसर्च करोगे विद लो कंपटीशन और मीडियम और हाई कंपटीशन, उन सब का जो मिनिमम सर्च वॉल्यूम है दैट शुड स्टार्ट फ्रॉम 10K, 10,000, मिनिमम 10,000 तो होना ही चाहिए। उसका एक रीजन और भी है, क्योंकि आप जिस कीवर्ड को यूज करते हो रैंकिंग के लिए, और जब आपको रैंकिंग मिलती है, सपोज करो उस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है 10,000, अगर आप उस कीवर्ड के बेस पे अपनी वेबसाइट को नंबर 1 रैंक कराते हो, तो एक थंब रूल ये है कि टोटल सर्च वॉल्यूम का आपकी वेबसाइट पे 40 to 50% ट्रैफिक ही जाएगा मैक्सिमम। तो आप ये मान के चलो, अगर आपने 1000 सर्च वॉल्यूम कंसीडर किया है कीवर्ड का, और आप इतना एफर्ट करोगे उस कीवर्ड पे अपनी वेबसाइट को नंबर 1 रैंक कराने के लिए, तो 1000 में से एक महीने में आप सोच लो 400 to 500 लोग ही विजिट करेंगे, विच इज नॉट वेरी गुड फॉर बिजनेस, कि आपकी शॉप पे एक महीने में सिर्फ इतने लोग आ रहे हैं, और वो भी जरूरी नहीं है कि वो आपसे प्रोडक्ट बाय करके जाएं। तो जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा और आप उस कीवर्ड के ऊपर सक्सेस गेन कर लेते हो अपनी वेबसाइट को नंबर 1 रैंक कराने के लिए, तो उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि आपकी वेबसाइट पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स विजिट करें या ऑडियंस विजिट करे, या हम टेक्निकली इस टर्म को लेते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक आएगा। तो इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। यहां पे सबसे पहले आपने देखना है कि कीवर्ड 3 वर्ड्स का है या नहीं है, और उसका इंटेंट क्लैरिफाई हो रहा है या नहीं है। अगर इंटेंट क्लैरिफाई हो रहा है, 3 वर्ड या 3 वर्ड से ज्यादा का है, और उसमें कोई स्टॉप वर्ड नहीं है, देन दैट कीवर्ड कैन बी कंसीडर। और उसके बाद आपने देखना है सर्च वॉल्यूम, या सर्च वॉल्यूम 10K या 10K से ज्यादा का है और कंपटीशन मैच हो रहा है, तो वो कीवर्ड आप सिलेक्ट कर सकते हो, कंसीडर कर सकते हो फॉर योर वेबसाइट और वेब पेज ऑप्टिमाइजेशन। एक चीज का और ध्यान रखना है, जब आप इस स्क्रीन पे आपको ये डाटा दिखाता है, कई बार क्या होता है कि ये डाटा कुछ इस तरीके से नजर आएगा, आपके पास कीवर्ड पूरी तरीके से यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो बाइसेक्शन ऑफ 2 कॉलम्स हैं, यहां से आपने इसको ड्रैग कर लेना है राइट की तरफ, और ये कॉलम को विड्थ को थोड़ा इंक्रीज कर लेना है। तो विड्थ इंक्रीज होने से आपको जो कीवर्ड है वो पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस को एज्यूम करते हुए और कंसीडर करते हुए आपको एक कीवर्ड रिसर्च एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, और एटलीस्ट 15 कीवर्ड्स आपने सिलेक्ट करने हैं, और उन कीवर्ड्स को आपने देखना है कि वो इस सारे क्राइटेरिया को मैच करें। अब मैच करने के लिए क्राइटेरिया हमने क्या क्या यहाँ लिया है, एक तो सर्च वॉल्यूम का क्राइटेरिया है, दूसरा किसी भी कीवर्ड में आपने स्टॉप वर्ड्स को अवॉइड करना है, ब्रांड नेम या ट्रेडमार्क को अवॉइड करना है, प्रोडक्ट मॉडल नंबर या सीरियल नंबर को अवॉइड करना है, कलर नेम को अवॉइड करना है, ईयर नेम, मंथ नेम, सिटी, स्टेट और कंट्री नेम को भी अभी के लिए अवॉइड करना है। ठीक है, तो ये चीजों को अवॉइड करते हुए आपने जो है इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। तो इसका थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं कि किस तरीके से आप लोगों ने इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। एक मैंने एक सैंपल शीट बनाई है कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि कीवर्ड कैसा होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा नो ब्रांड नेम्स, तो जैसे सैमसंग मोबाइल फोन, ये 3 वर्ड्स हो गए,
बट सिंस इट इंक्लूड्स द ब्रांड नेम इट इज नॉट अलाउड। तो कीवर्ड कैसा होना चाहिए? मोबाइल फोन स्टोर, बेस्ट मोबाइल फोन्स, कुछ इस तरीके से कॉस्ट इफेक्टिव या लो कॉस्ट मोबाइल फोन्स, कुछ इस तरीके से आप कीवर्ड को सिलेक्ट कर सकते हो। देन अगेन प्रोडक्ट मॉडल नेम और मॉडल नंबर, लाइक एक कीवर्ड हम ले लेते हैं एप्पल 16 मैक्स प्रो, इसमें ब्रांड नेम भी आ गया और प्रोडक्ट का मॉडल नंबर या सीरियल नंबर भी आ गया। नहीं, बेस्ट मोबाइल फोन और बेस्ट मोबाइल फोन स्टोर, बेस्ट मोबाइल फोन कैमरा या अब इसमें आपको जैसे मैंने बोला कि स्टॉप वर्ड तो यूज नहीं करना है, तो नॉर्मली जो यूजर क्वेरी करेगा बेस्ट मोबाइल फोन विद कैमरा या 24 मेगापिक्सल कैमरा या कुछ इस तरीके से लिखेगा, बट आपने उन चीजों को अभी कंसीडर नहीं करना है। एक जेनरिक फॉर्म में कीवर्ड रिसर्च करना है। नाउ कलर नेम, ब्लैक कलर कैजुअल शर्ट, तो उसकी बजाय ऑफिस कैजुअल वियर या पार्टी वियर शर्ट, कुछ इस तरीके से अभी कलर को भी अवॉइड करना, क्योंकि अगर मैं कलर की बात करूं, ब्लैक कलर बहुत सारी और चीजों के साथ भी यूज होता है अदर देन अपैरल्स, ठीक है। ब्लैक कलर रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, ब्लैक कलर पेन भी हो सकता है। तो ब्लैक कलर जो ब्लैक टर्म है ना, उसका सर्च वॉल्यूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि वो ब्लैक जो एक कलर ब्लैक टर्म है वो बहुत और अलग अलग सिचुएशंस में यूज किया जाता है। ईयर नेम, फैशन वियर 2025, इस तरह के कीवर्ड्स आपको रिसर्चिंग के दौरान सामने आएंगे, बट आपने कंसीडर नहीं करना। वुमेन फैशन वियर, कुछ कीवर्ड इस तरीके से होना चाहिए। देन मंथ नेम भी मैंने आपको दिखाया कि कैसे नहीं लिखना आपने, और करेक्ट वे क्या है, बेस्ट वुमेन वेयर। सिटी स्टेट और कंट्री नेम, हम नॉर्मली यूजर इंटेंट क्या होता है, यूजर यूज करता है अगर उसको लोकल सर्च परफॉर्म करनी है, ठीक है, तो लोकल सर्च में हम रिकमेंड करते हैं कि सिटी स्टेट या कंट्री का नाम लिखा जाए, तभी उसको रिजल्ट जो है लोकल। अब जैसे मेरे को चंडीगढ़ में ही देखना है या मोहाली में ही देखना है कि बेस्ट मोबाइल फोन स्टोर कौन सा है, तो नेचुरली मैं इन मोहाली या इन चंडीगढ़ जरूर लिखूंगा। बट अभी के लिए हम अगर लेके चलें कि एक जेनरिक टर्म हमें मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। इसको मैं क्यों अवॉइड करने के लिए बोल रहा हूँ, एक सिचुएशन लेके चलते हैं, इट मे बी हाइपोथेटिकल सिचुएशन, कि आज आपका बिजनेस चंडीगढ़ में है एंड यू आर रनिंग ए मोबाइल फोन स्टोर, और आपने एक कीवर्ड लिया बेस्ट मोबाइल फोन स्टोर इन चंडीगढ़, जो भी आपकी वेबसाइट बनी है आपने इस कीवर्ड के बेस पे अपनी उस वेबसाइट को नंबर 1 रैंक करा लिया। व्हाट इफ एक सिचुएशन है कि आपने आज चंडीगढ़ से बिजनेस छोड़ के कल को जाके अंबाला में शुरू कर लिया, तो आपका बन जाएगा कीवर्ड बेस्ट मोबाइल फोन स्टोर इन अंबाला। और अगर आपकी वेबसाइट पहले से ही बेस्ट मोबाइल फोन स्टोर इन चंडीगढ़ पे ऑप्टिमाइज्ड है, नंबर 1 रैंक कर रही है, और आप बिजनेस को उठा के अंबाला में ले गए हो, तो whosoever is using this particular keyword बेस्ट मोबाइल फोन स्टोर इन चंडीगढ़, तो वो आपकी वेबसाइट उसके सामने आ जाएगी। नाउ यू आर नो मोर प्रेजेंट इन चंडीगढ़। तो ये एक सिचुएशंस जो आ जाती हैं, उनको अगर हम पहले से ही कंसीडर करके चलें कि कल को कोई भी सिचुएशन हो, हमारा वो जो कीवर्ड है एज इट इज ही वर्क करे, हमारा बिजनेस कहीं पे भी कोलोकेट हो जाए, हम किसी भी प्रोडक्ट लाइन को स्विच कर लें, मतलब आज मोबाइल फोन है, कल किसी और कंपनी के लिए हम मोबाइल फोन के लिए काम करना शुरू कर दें, तो हमारी जो वेबसाइट के ऑप्टिमाइजेशन पे है या कीवर्ड पे है, उस पे कोई इफेक्ट नहीं आना चाहिए। तो आपने इन चीजों का जरूर ध्यान रखना है व्हाइल यू आर डूइंग कीवर्ड रिसर्च फॉर योर बिजनेस वेबसाइट। तो यहाँ पे जैसे मैं आपको बता रहा था, ये आपको ड्रैग करके इसको विड्थ को इंक्रीज कर लेना है, तो आपको ये पूरा का पूरा जो है कॉलम और पूरा का पूरा जो कीवर्ड है वो विजिबल हो जाएगा। अब आपने जो भी कीवर्ड आपके फाइनल सिलेक्शन होगी, आपने एक एक्सेल शीट बनानी है, उस एक्सेल शीट में इस कीवर्ड का नाम, कीवर्ड क्या है, मंथली एवरेज सर्च वॉल्यूम क्या है वो, और कंपटीशन क्या है, ये 3 कॉलम से आपने एक एक्सेल शीट बनानी है, जो कि आपको फाइनल सबमिट करनी है ऑन अ गिवन डेट। वो डेट आपको मैं बता दूंगा कौन सी डेट को आपका असाइनमेंट सबमिशन डेट है, बट आपने फाइनल जो असाइनमेंट सबमिट करनी है वो एक्सेल फॉर्मेट में कीवर्ड नेम, कीवर्ड सर्च वॉल्यूम और कंपटीशन, ये 3 कॉलम के साथ आपने इस असाइनमेंट को सबमिट करना है। सो आई गेस ये असाइनमेंट आपको क्लियर हो गई होगी, और कीवर्ड रिसर्च किस तरीके से परफॉर्म करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। एक और चीज, अगर आपको जैसे आपने जो पहले यहाँ पे टर्म यूज की, इस टर्म के बेस पे यहाँ पे कुछ कीवर्ड मिले या नहीं मिले, हो सकता है किसी केस में ना भी मिले, तो आप देखो यहाँ पे नीचे ये प्लस साइन के साथ कुछ सजेशंस आ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट टाइम जैसे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, डिजिटल ट्रेनिंग, या फिर ये भी कीवर्ड नहीं है डिजिटल मार्केटिंग प्रोग्राम, तो यहाँ पे आप इस टर्म को यूज कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज आप कीवर्ड यूज कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के लिए कोई और। तो यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग द कीवर्ड to research final keywords. So that's it, students. All the best and continue with your work. Thank you.